Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to do daffodils. Everybody have already done daffodils. Now, look at the daffodils. It is William Wordsworth, the poet's name. Okay, but most of the students they just write William words and then words. There is no gap between words and words. This is a single name. Don't do this mistake. William Wordsworth. You know daffodils, they are very have a medicinal effect as well. Daffodils is just not only a flower, but they have medicinal effects. They are treated, their chemicals is treated in cancer patients. They are asthma patients, and there are too many other skin diseases. They are using daffodils. Okay, today I am just going to read again daffodils because you know that when I do reading there are too many exercises there, and there are too many things in this poem. I wandered lonely as a cloud. Look at as a cloud. When you say as a cloud, the first word will tell you that if you remember as a cloud, when we compare two things, similar to different things with the word as or like, what is that? It is simile. They will ask you in MCQs, what is simile? When we compare two things by using the word as or like. Here the word says, I wandered lonely as a cloud that flows on high over vales and hills. When all at once I saw a crowd. What is a crowd? Collective noun. Crowd. What is crowd? Collective noun. They will ask you in exercise. A crowd is a collective noun. A group of things, when they are used as a unit, it is a collective noun. A host of golden daffodils besides the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Look at these two words: fluttering and dancing. Just tell me, daffodils are living things or non-living things? Definitely non-living things. But we are giving them quality of fluttering. Fluttering means when you just move your wings. The birds move their wings, there is a sound comes out of their wings. That is fluttering. Dancing is also a living phenomenon. People who, animals and human beings, they are dancing. But here the poet is using this word to the daffodils. They are non-living things, fluttering and dancing in the breeze. Why he is using it? Because you know he is using personification. It is another thing that we will ask you in exercise. Now, all of these things, simile, personification, and metaphor, they are a figure of speech. Okay, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretch in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I. Look at this one, 10,000. 10,000 I saw. Can you just imagine that he has counted them or not? He didn't count at that time because he is just taking exaggeration. What is exaggeration? इसको हम कहते हैं मुबालगा लाइन. And this exaggeration is also a part of a figure of speech. It means that the poet is using hyperbole. Hyperbole. He is using hyperbole here. 10,000. किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Look at this one, tossing their heads. Non-living things cannot toss. Human beings can toss. Living things can toss. Toss means just to raise your head, just like this. Toss. This one is to flick something. तो यहाँ पे फिर वो personification यूज कर रहा है कि डैफोडिल जो थे ना, उनके सर जो थे ना, वो हिल रहे थे, ऊपर की तरफ जा रहे थे. इसका मतलब है personification यूज की गई यहाँ पे. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee.
डैफोडिल्स के पीछे जो लेक थी ना उसकी वेव्स भी मूव कर रही थी, लेकिन जो इसकी वेव्स थी ना डैफोडिल्स की जो 10,000 में थे और उतनी ज़्यादा तादाद में थे, जब वो हवा की वजह से मूव करते थे जो उनकी वेव्स बनती थी ना, वो उसने कमाल कर दिया और उसने उनको मात दे दी जो वेव लेक से आ रही थी। इन अ ग्लीमिंग, इन अ हैप्पीनेस और joyful, a poet could not but be gay and such a jocund company. Jocund here mean happy company. अब देखिए यहाँ पे शब्द क्या लगा रहा है, a poet could not but be gay. यहाँ पे पोएट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ खुश हो सकता है। क्यों खुश हो सकता है? क्योंकि पोएट हैज अ पावर ऑफ इमेजिनेशन। उसको पता है कि आज मैं ये पिक्चर अपने अंदर, अपने दिमाग के अंदर ढालूंगा और वहाँ वापस जाके मैं इसको एंजॉय करूंगा इस पिक्चर को। अब देखिए, a poet could not but be gay in such a jocund company. Jocund company means when he was in the natural objects, because Wordsworth is also is a poet of nature, and whenever he talks about the natural objects. अब वो natural objects में इतना खुश हो रहा है, अब वो कहता है कि जब मुझे ये खुशी नजर आ रही है ना, इसको मैं कैप्चर कर रहा हूँ। In such a I gazed and gazed but little thought. मैं उनको देखता गया। उस वक्त मैंने अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया, अपनी आंखों को खोला रखा। ये है विजुअल इमेजरी। विजुअल इमेजरी, द पोएट इज गिविंग यू विजुअल इमेजरी। इमेजरी क्या होता है? जब कोई चीज आपके जहन में बिठा दी जाए 5 सेंसेस यूज करके, स्मेल, टच, हियरिंग, लिसनिंग एंड सीइंग। What I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. मुझे इतनी खुशी हो रही थी, वो मुझसे मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी वो चीज़ें, नेचुरल ऑब्जेक्ट को, डैफोडिल्स को देखना। अब आखिरी स्टैंजा में उसका मेन थीम आ गया, डैफोडिल्स को लिखने का पर्पस क्या था। इस देखें, for of when on my couch I lie. The poet after the wandering of the hills, he went to London, and when in London he was sitting in his room, while sitting in a couch, he said in vacant or in pensive mood. देखें, दूसरी शर्त उसने लगाई है, आपका मूड पहले पेंसिव होना चाहिए। पेंसिव मीन्स सीरियस एंड फ्री ऑफ ऑल अदर थिंग्स। वेकेंट, खाली, बिल्कुल। कहता है जब मैं अपने अंदर ये मूड लेके आता हूँ, इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, they flushed upon that inward eye. They कौन? वही डैफोडिल्स का जो इमेज उसने अपनी आंखों में उठाया था, जहाँ उसने ऊपर कहा I gaze and gaze। अब उसकी बात कर रहा है कि they flashed upon that inward eye। मेरी पावर ऑफ इमेजिनेशन के अंदर, मेरी इमेजिनेशन के अंदर वो दोबारा जिंदा होके आ गए, बहुत तेजी से आ रहे थे वो। Which is the bliss of solitude। अब देखें, ये चीजें जो होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक रहमत है, और ये ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड है। ये तन्हाई की वजह से सब कुछ। अगर आप तन्हाई में बैठे हो और अपने आप को रिमाइंड करें, अपने वो पुरानी इमेजिनेशन को लेके आए, तो आपको एक खास किस्म की खुशी मिलती है। दैट इज द पर्पस ऑफ अ पोएट, ठीक है ना। ही बिलीव्स इन द पावर ऑफ इमेजिनेशन। ही इज नॉट लाइक अस दैट व्हेन वी गो टू Gapan and Iran and we just make a clip pictures in our mobiles and we just capture it. But the poet, he just reminds them again and again by recalling them, that by using his power of imagination. अब वो आखिर में 2 लाइन्स का उसमें उसका थीम डालता है, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। जिस तरह वो पुराना इंसिडेंट जो था ना, अब वो बिल्कुल लाइव हो गया उसके साथ। कहता है मैं और वो डैफोडिल्स, वो जो गैप था ना बीच में, वो खत्म हो गया। मैं बिल्कुल उसी तरह हूँ जैसे मैं आज उस वक्त नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में था। मैं बिल्कुल, मेरा दिल उसी तरह लहरा रहा है खुशी से। तो दिस इज द पोएम, एंड यू नो दैट दिस इज जस्ट रिटन फॉर द पोएट। पोएट इज द पोएट ऑफ नेचर, दैट्स व्हाई ही राइट्स सच अ पोएम्स। नाउ वी कैन गो टू द एक्सरसाइजेस। Exercise, come to the point, figure of speech, page number 54. Open your page number 54. देखें, figure of speech। अब जब बताया था, figure of speech is the art with the writer or poet. They use it when they want to give their writing an ornament, a decoration. When they want to decorate their writings and their sayings, they use this figure of speech just to beautify their writings। Simile, देखिए, first of all simile
सिमिली में हम क्या करते हैं, दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं बाय यूजिंग द वर्ड एज और लाइक। ये सिमिली, ठीक है ना। ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, ही इज एज स्ट्रांग एज अ रॉक। तो वी आर यूजिंग सिमिली फॉर दिस पर्पस। हर आईज ट्विंकल्ड लाइक स्टार्स, ठीक है। लाइक का वर्ड आ गया ना, दो चीजों को कंपेयर कर रहा है, आईज को और स्टार्स को, बाय यूजिंग द वर्ड लाइक। इसका मतलब है ये सिमिली है। शी वॉज एज बिजी एज अ बी, जो शहद की मक्खी होती है, बी होती है, वो इतनी बिजी होती है, इतना सारा दिन मूव करती रहती है, इसलिए उसने उसको कंपेयर किया तो शी के साथ। शी वॉज एज बिजी एज अ बी। जब भी आपको बोर्ड में एमसीक्यूज में पूछेगा ना, एज और लाइक का वर्ड यूज करेगा और साथ में कंपैरिजन होएगा, तो नीचे चार ऑप्शन दी होगी, तो आप इसमें सिमिली का यूज करना है, तो सिमिली को टिक करना है। मेटाफर, मेटाफर भी बिल्कुल वही कंपैरिजन होता है, बट in metaphor we do not use as or like. We straightforward use metaphor, but we straightforward compare two things without using the word as or like. He is a rock. What? I didn't say he is as steadfast as a rock, he is as strong as a rock. I just straightforward said compare him to that rock, but without using the word as or like. It means what's the quality of rock? It is firm, steadfast and very strong. That's why without using the word as or like, when we use direct, and this word is called metaphors. He proved a lion in the light, in the fight. अब देखिए he proved a lion. Lion यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि he is as brave as lion. उसने डायरेक्टली इसको lion कह दिया। That is the metaphor. His heart is red rose. अब heart को compare किया red rose के साथ, तो by using the word as or like, that is also a metaphor. Next है personification. Personification मैंने अभी आपको पोएम पढ़ाते हुए बताया। What is personification? When living qualities is given to the non-living things. जब हम कहते हैं देखिए living qualities are flying. Flying is a living quality. Birds are flying. तो flying है living quality. अगर मैं कहूँ time is flying, time is running or flying. देखिए ये क्वालिटी जो है ना फ्लाइंग वाली, वो मैंने यूज की है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। हालांकि वो यूज होती है एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, बर्ड्स के लिए यूज होती है फ्लाइंग। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पर्सोनिफिकेशन है, लिविंग क्वालिटीज को हमें नॉन लिविंग को दे देते हैं। यहाँ पे इसमें एग्जांपल देखें, द कैंडल फ्लेम डांस इन द डार्क। अब कैंडल फ्लेम नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या कर रही है? डांस कर रही है। डांस क्वालिटी किसकी है? लिविंग बीइंग्स की, ह्यूमन लाइफ। तो इसलिए ना यहाँ पे नहीं देखें डांस का वर्ड यूज हो रहा है, तो ये पर्सोनिफिकेशन के तौर पे आ रहा है कि डेड, कैंडल फ्लेम डेड होते हैं। द सनफ्लावर्स नोटेड इन द विंड। अब देखिए सनफ्लावर्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, और लेकिन वो इंसानों के लिए अपने कहने से नोटेड। नोटेड मीन ऐसे सर को हिलाना। तो व्हेन बिकॉज ऑफ द फास्ट विंड दैट्स व्हाई दे वर नोटिंग, दे यूज द वर्ड नोटेड फॉर पर्सोनिफिकेशन। इमेजरी, another word for figure of speech. मैंने क्या बताया? figure of speech क्या होती है? To make the poet's writing or poet's poem just beautiful or adorn, make it adorn. अब imagery, जब पोएट डैफोडिल्स की जिक्र करता है तो वो आपको बताता है कि मैं वहां गया हुआ था, तो उस तरह किस तरह बताता है? येलो डैफोडिल्स। अब देखिए आप जब येलो डैफोडिल आंखें बंद करके देखते हैं ना, आपकी आंखों में येलो का कलर आ जाता है। दैट इज द विजुअल क्वालिटीज। देखिए 5 तरह की इमेजेस होती हैं विजुअल, जो आंखों से होती हैं। उसने पोएट ने वहां पे देखा, उसने जगह भी बताई, beneath the trees और beside the lake, ये जगह भी बता रहा हूँ कहाँ पे है। तो इसलिए आपको वो बताता है कि आप भी वहां पे पहुंच जाए इन द वर्ल्ड ऑफ पोएट। ऑडिटरी, द रसलिंग ऑफ लीव्स। जब आप बैठे होते हैं तो रसलिंग ऑफ लीव्स का मतलब है, रसलिंग जो है वो
साउंड है कहाँ से आती है? पत्तों से। तो जब किसको टच करती है? आपके ईयर्स को, तो इसको ऑडिटरी कहते हैं। जिस तरह ऑडियो होती है, ऑडियो वीडियो, ऑडियो जो आपके कानों से हो, वीडियो जो आपके विजन से हो। इसी तरह फिर स्मेल जो है वो भी एक एग्जांपल, वो भी इमेजरी है। सेंट ऑफ एप्पल्स, ठीक है ना। आप सेंट ऑफ एप्पल कहाँ कैसे फील करते हो? टच करके या स्मेल करके। इसलिए स्मेल जो है ना वो भी एक पावर ऑफ इमेजरी है, सेंसेस है। टेस्ट, स्वीट एंड जूसी ऑरेंज, स्वीट एंड जूसी ऑरेंज, डेफिनेटली स्वीट जो टेस्ट होगा वो टेस्ट करके करते हैं ना। जूसी क्या होता है? वो अंदर जिसमें से जूस निकल रहा हो तो जूसी ऑरेंजेस कहते हैं। तो वो हमें टेस्ट से पता चलता है। इसी तरह लास्ट इमेजरी आ गई टच। अब देखें, दिस बुक इज वेरी स्मूथ, तो मैं टच करके फील कर रहा हूँ ना, दिस पेन इज वेरी स्मूथ एंड पॉलिश्ड। ये मैं सिर्फ टच करके फील करता हूँ। तो इसलिए जो चीज़ें हम फील करते हैं बाय यूजिंग 5 सेंसेस, इट इज कॉल्ड इमेजरी। अच्छा जी, अब आ जाए पेज नंबर 55 पे। अब वही एक्सरसाइज आपको एग्जाम में आपको इस तरह पूछेगा, वो कहेगा हियर इज अ लिस्ट ऑफ फ्यू सिमिलीज, मेटाफर्स एंड पर्सोनिफिकेशन। 3 चीजों का पूछेगा आपसे। कैन यू आइडेंटिफाई देम? राइट एस फॉर सिमिली, एम फॉर मेटाफर एंड पी फॉर पर्सोनिफिकेशन। अब टाइम इज मनी। अब इसमें उसने टाइम को कंपेयर किया मनी के साथ। अब खुद गैस करें, इसमें एज और लाइक का वर्ड यूज किया उसने? नहीं हुआ। इसका मतलब वो डायरेक्ट कंपेयर कर रहा है, तो इसलिए ये मेटाफर है। यहाँ पे एम लिख लें। यहाँ पे देखो दूसरे में आप साफ पता चला एज बिजी एज अ बी। 2 चीजों का कंपैरिजन है बाय यूजिंग द वर्ड एज। तो ये क्या होगा? सिमिली। द विंड विस्पर्ड द रूमर्स ऑफ द फॉरेस्ट। विंड नॉन लिविंग थिंग है ना। अब विंड जो है वो विस्पर करती है। विस्पर कौन करता है? ह्यूमन बीइंग्स, कानों में आकर सरगोशी करना। तो उसने विंड को ये क्वालिटी दे दी है जो इंसानों वाली है, विस्पर। तो ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन। एज जेंटल एज लैम्प। लैम्प जो उसका गोट का बच्चा होता है, छोटा लैम्प। एज जेंटल एज लैम्प, बिल्कुल इतना आजीज हम्बल और शरीफ जितना लैम्प होता है। तो ये कंपैरिजन है। वर्ड यूज हुए हैं यहाँ पे एज, तो हम इसको कहेंगे ये सिंपली है। द सोरी इंजन व्हीज्ड इट्स डेथ कफ। अब वो बेचारा सा एक इंजन था, अब बिल्कुल पुराना हो गया हुआ था। अब वो जब वो स्टार्ट होता था उसको उसने कफ के साथ कंपेयर कर दिया। व्हीज्ड इट्स डेथ कफ। व्हीजिंग साउंड होती है जो निकलती है, इसलिए ना यहाँ पे भी ये पर्सोनिफिकेशन है। इंजन जो है नॉन लिविंग थिंग्स है। द हार्ट ऑफ लायन, द हार्ट ऑफ लायन, ये मेटाफर। द एप्पल ऑफ माय आई, ये देखें उसने ये नहीं कहा ही इज एज लाइक ही इज फेवर्ड, ही इज द एप्पल ऑफ माय आईज विदाउट यूजिंग द वर्ड एज और लाइक। उसने क्या डायरेक्ट कह दिया, तो ये मेटाफर हुआ। फिर वो आ गया सिमिली, एज कनिंग एज अ फॉक्स। इसमें एज का वर्ड यूज हुआ, तो ये सिमिली है। ब्राउन ग्रास वाज बेगिंग फॉर वाटर। अब देखें बेगिंग की क्या क्वालिटी है? बेगिंग हम ह्यूमन बीइंग जो है वो फकीर जो होते हैं वो करते हैं बेगिंग, ये ह्यूमन क्वालिटीज हैं। तो उसने ये ब्राउन ग्रास को दे दी है। ब्राउन ग्रास जो बेचारी थी जहाँ पे पानी नहीं आ रहा था उसको उसने ब्राउन ग्रास कह दिया, और वो बेचारी इल्तिजा कर रही थी पानी के लिए। तो इसका मतलब ब्राउन ग्रास वाज बेगिंग फॉर वाटर इज अ एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है जी एज वाइज एज एन आउल। अब देखिए फिर वही एज वाइज एज एन आउल, उल्लू की तरह करना। आपको पता है इंग्लिश लिटरेचर में आउल जो है ना वो इज अ साइन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इट अ वेरी इंटेलिजेंट बर्ड, बिकॉज व्हाट ही डज, ही ऑलवेज थिंकिंग एंड थिंकिंग ऑल द टाइम। whenever you see him he always just focusing his eye, by focusing his eyes, and he was just thinking and thinking. That's why it is called as wise as an owl. ये सिमिली हो गई। blanket of snow, देखो उसने ये नहीं कहा snow was as thick as blanket, उसने डायरेक्टली कह दिया the blanket of snow। तो इसका मतलब है without using the word as or like, तो ये मेटाफर हुआ। यहाँ पे फिर देखो as black as crow, अब क्रो की तरह काला। अब एज का वर्ड यूज आ गया तो आप समझ जाओगे कि ये सिमिली है। यहाँ पे एस लिखेंगे हम। नहीं जी, अगला एक्सरसाइज आ गई वो है फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ साइन ट्रिपल। ले जी अब चलते हैं पेज नंबर 56। 56 वही कॉनोटेशन आ गए फिर। कॉनोटेशन, व्हाट यू नो कॉनोटेशन? एनीवन नोज अबाउट दिस वन? कॉनोटेशन
देखिए जब आप डिक्शनरी खोलते हैं, ना उसमें आपको सबसे पहले उसका मीनिंग नजर आएगा, उसको डिक्शनरी मीनिंग कहते हैं, डेनोटेशन। जब आप किसी वर्ड को डिक्शनरी में देखते हैं ना, तो जो आपको डिक्शनरी में पहला वर्ड लिखा हुआ नजर आता है ना, उसको हम डेनोटेटिव मीनिंग कहते हैं। मतलब देखिए अब ये है मेटिकुलस, एक वर्ड है मेटिकुलस, इसका डिक्शनरी में देखेंगे उस पे लिखा होगा केयरलेस, केयरफुल। इस पे डिक्शनरी में देखेंगे मेटिकुलस के आगे लिखा होगा केयरफुल, इसका मतलब है केयरफुल, इसका डेनोटेटिव मीनिंग होगा। जब इसी केयरफुल को आप इस तरह यूज कर देंगे मेटिकुलस के लिए या सिलेक्टिव, वो बड़ा सिलेक्टिव है, ये इसका पॉजिटिव कॉनोटेशन। अब आप कई वर्ड सुनते हैं यार, यू आर वेरी पिकी, यू आर वेरी पिकी। पिकी मीन बहुत देर लगाते हो आप सेलेक्ट करने में, तो यू आर वेरी पिकी। अब पिकी इसका नेगेटिव दूसरा मीनिंग है, तो ये कॉनोटेशन मीनिंग हो गया। पहला मीनिंग डेनोटेटिव मीनिंग जो डिक्शनरी का मीनिंग होता है, डी से डिक्शनरी, डी से डेनोटेटिव। तो ये देख लिया मैंने। अब हर वर्ड के आगे दो वर्ड और भी होते हैं, पॉजिटिव कॉनोटेशन होता है, नेगेटिव कॉनोटेशन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव कॉनोटेशन। अब इसी की एक्सरसाइज आगे आ रही है, वो करेंगे तो आपको पता चलेगा पॉजिटिव जो अपनी असली सेंस में यूज हो और नेगेटिव जो उससे हम आपस करते थे। ये देखें, अब उसने कहा सॉलिट्यूड, पॉजिटिव कॉनोटेशन, अच्छा वर्ड है ना सॉलिट्यूड, पोएट ने भी यूज किया है कि अपनी पोएम में व्हेन इन सॉलिट्यूड। तो उसके बाद सॉलिट्यूड का उसने कहते हैं लोनली। जब हम लोनली का वर्ड यूज करते हैं ना, अब देखिए लोनली में आपको थोड़ा सा ना टाइप ऑफ सिंपैथी नजर आती है, सिंपैथी, हम दर्दी नजर आती है, इसलिए इसको नेगेटिव मीनिंग कहते हैं कॉनोटेशन। पॉजिटिव मीन सॉलिट्यूड, तन्हाई में, ठीक है। सॉलिट्यूड बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, बहुत बड़ी। ये जो आपको इसलिए तो अल्लाह ताला कहते हैं जो तहज्जुद की नमाज पढ़ता है ना, इसलिए इसमें क्या होती है, सॉलिट्यूशन होती है। सॉलिट्यूड होगा तो आप बड़े ही आराम से पेंसिल मूड में जाकर आप इबादत कर सकते हो। तो इसलिए इबादत के लिए ये सॉलिट्यूशन होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये पॉजिटिव मीनिंग है और नेगेटिव मीनिंग लोनली। जब आप किसी को कहोगे आई फील लोनली, तो वो आपके साथ सिंपैथी करेगा, तो इसका डबल मीनिंग होगा। अब इसके एक्सरसाइज में आ जाते हैं। देखिए अब गेज जो है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। गेज, ही इज गेजिंग एट मी, ये तो आम लोग भी देखते हैं ना, आई वाज गेजिंग, द पोएट गेज्ड एंड गेज्ड, तो उसने पोएट ने भी जिक्र किया उसका। तो स्टेयर इज समथिंग डिफरेंट। स्टेयर देखिए आप किसी को कंप्लेन भी कर सकते हो, व्हाई आर यू स्टेयरिंग एट मी, तो ये स्टेयरिंग जब आप बहुत से आंखें खोल के किसी को फाड़ कर देखते हैं तो ये नेगेटिव मीनिंग चला जाता है उसमें। शाइन एक और मीनिंग है, शाइन का मीनिंग है नॉर्मल शाइन करना, द सन वाज शाइन। ग्लेयर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी शाइन जो इसको पॉजिटिव और ग्लेयर उसका नेगेटिव हो गया। होड़ का वर्ड जो है ना किसी चीज को इकट्ठा करना, लेकिन ये अच्छी सेंस में यूज नहीं होता, इसलिए इसको नेगेटिव कॉनोटेशन कहेंगे। और कलेक्ट तो अच्छे सेंस में भी यूज होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव कॉनोटेशन की एक्सरसाइज की होगी। अब आपके जैसे मैंने आपको पोएम पढ़ाते हुए कहा था ना, कलेक्टिव नाउन भी यूज हुए उसमें, तो कलेक्टिव नाउन की क्वेश्चन आता था एमसीक्यूज का, आपने वो भी इसको गौर करना है कि क्या चीज होती है। व्हेन डिफरेंट थिंग्स आर जस्ट जॉइंट टुगेदर एंड मेक वन यूनिट। जैसे एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं, हम ये नहीं कहते कि ईच एंड एवरी प्लेयर इज प्लेइंग, हम कहते हैं द टीम इज प्लेइंग, ठीक है। इसी तरह आर्मी जो है, कितने ब्रिगेड्स में कितने ट्रूप्स होते हैं, सब मिला के जितने भी आर्मी होते हैं हम उनको एक आर्मी कहते हैं। इसी तरह पुलिस के अंदर लाखों की तादाद में लोग होते हैं, हम एक यूनिट के तौर पर उनको पुलिस यूज करते हैं। अब देखिए सिंगुलर नाउन सच एज कमेटी और टीम। कमेटी क्या होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स इन सम ऑर्गेनाइजेशन। टीम दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। एनिमल्स और थिंग्स, एनिमल का ग्रुप, चीजों का ग्रुप, और ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल अ crowd is in this poem refers to a collection of a large number of daffodils। इसलिए मैंने जब पढ़ाते हुए मैं आपको बताया था क्राउड का वर्ड आएगा उसमें, तो क्राउड जो है वो कलेक्टिव नाउन होगा। और बहुत से कलेक्टिव नाउन होते हैं, इसलिए या आगे इसने एग्जांपल दिए, राइट द कलेक्टिव नाउन ऑफ द फॉर्म, अ कलेक्शन ऑफ शिप्स
फ्लीट, FLEET, कलेक्शन ऑफ शिप, जब शिप्स इकट्ठी होकर आ रही होंगी हम उनको फ्लीट कहते हैं। अब कलेक्शन ऑफ कैटल, हर्ड, जब मवेशी और कैटल इकट्ठे हो एक जगह पे तो हम कहेंगे देयर इज अ हर्ड ऑफ कैटल। अब कलेक्शन ऑफ सिंगर्स, choir, CHOIR, a collection of soldiers, troops, collection of soldiers, सब soldiers इकट्ठे हो गए और आर्मी भी कह सकते हैं इसको। Underline the preposition placed on use sense. Use the following preposition in your sentences in the your word on sentences. ये आपने behind, beside, next to, under, over and along, across ये यूज कर लेना है। Conjunctions, ये एग्जाम में आपको पूछेंगे conjunctions, इनको linking words कहते हैं, linking words, conjunctions। Conjunction, join together, two things join together, two sentences को हमने इन linking words को यूज करके हम बनाते हैं linking words। अब ये देखिए दो तरह के linking words होते हैं, ये आप पढ़ेंगे। नंबर 1, types of coordinating conjunction, these conjunctions can join sentences of equal rank, इधर भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस और उधर भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस, और इनको हम जोड़ देते हैं ये फैन वॉइस के साथ। यू नो फैन वॉइस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फैन वॉइस। ये देखिए फैन फॉर ए एंड, नीदर और नॉर, but, or, either or, why, yet and as for so। अगर कोई सेंटेंसेस, जब दो क्लॉजेस इन सेंटेंसेस में मिली हो, फॉर, एंड, नीदर, नॉर, ईदर, येट, सो, बट, तो आपने कैसे कर लेना है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ये जोड़ते हैं। और सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, इनके अपोजिट जितने भी होंगे ना, इनके अपोजिट जो बाकी सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होंगे। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन में आपको सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, अब इसमें उसमें फंक्शन क्या है, these conjunction join sentences one of which is dependent on the others। इसमें एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंड कर रहा होगा। ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई रीजन और वजह पूछी जाए तो आपने उनके साथ ये वर्ड यूज करना है, बिकॉज आई वाज लेट फ्रॉम स्कूल बिकॉज ऑफ द रेन, बिकॉज आई वाज स्टक इन द ट्रैफिक, दैट, व्हाइल, अनलेस, एज, व्हेन, सिंस, इफ एंड दो। तो अगर हमने जब आप जितने कंडीशन सेंटेंस करते हैं ना उसमें इफ वाली क्लॉज आती है ना, तो इफ वाली क्लॉज जो है ना वो कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज होती हैं। अब फिलिंग द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस, ये आप आगे चलते हैं। यूज ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल, ओके, use of present participle, I think we don't have we have a short of time, that's why we will do it next lecture। ये बहुत जरूरी चीज़ है, इसलिए इसको लिए टाइम चाहिए, तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में ले जाते हैं। Participles is a verb form used as an adjective, a modified noun and a pronoun। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़। Okay, now come to the point, another grammar word, participles। You know it's a very confusing word for a student। Participle ये बहुत दफ़ा एग्जाम में आता है, तो बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं gerund के साथ और जो आम वर्ब के साथ। देखिए पार्टिसिपल उसने डेफिनेशन बता दी है, इज अ वर्ब फॉर्म यूज एन एडजेक्टिव, इज अ वर्ब फॉर्म यूज एन एडजेक्टिव। जब नॉर्मल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज होगी तो ये सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, इसको पार्टिसिपल इसको भी कहेंगे।
लेकिन ये एडजेक्टिव के तौर पे नहीं यूज हो रही होगी वहाँ पे। ये 50% वर्ब होता है, 50% एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। A particle is the verb form used as an adjective to modify nouns and pronouns। अब आप देखें जब भी जैसे ing फॉर्म के साथ वर्ब के साथ ing फॉर्म के साथ अगर नाउन लिखा होगा ना तो फिर समझिए कि आप ये पार्टिसिपल है, क्योंकि वो क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव के तौर पे आता है, तो एडजेक्टिव हमेशा क्वालिफाई करता है नाउन को और नाउन को। अब देखिए द गर्ल is a verb plus ing or verb as an adjective। ये याद रखें तो verb as an adjective, ठीक है। अगर आप ये याद रहेगा ना आपको पार्टिसिपल आप एग्जाम में जो एमसीक्यूज आएंगे तो आप आराम से हमसे फाइंड आउट कर लोगे, कंफ्यूज भी नहीं होगे जेरेंट के साथ। अब द गर्ल इज सिंगिंग, ठीक है, गर्ल इज सिंगिंग। यहाँ पे सिंगिंग क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लड़की क्या कर रही है, सिंगिंग, वर्ब है एज ए वर्ब के तौर पर, ठीक है ना। जब एक्शन हो रहा है, जब एक्शन हो रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम इज आर एम के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो ये एज ए वर्ब यूज हुआ सिंगिंग। अब इसी सिंगिंग को मैं एज ए एडजेक्टिव यूज करूंगा, आई बॉट अ सिंगिंग डॉल। अब देखिए मैंने खरीदी, क्या खरीदी, डॉल। डॉल क्या है, नाउन। अब ये डॉल नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कैसी, नाउन डॉल कैसी थी, सिंगिंग। तो अब सिंगिंग का वर्ड जो है आईएनजी देखिए वो भी सेम सिंगिंग है, सेम स्पेलिंग है, लेकिन यहाँ पे सिंगिंग जो है ना वो ऐसे वर्ब नहीं आ रहा, वर्ब तो हमें बहुत आगे मैंने खरीदी, यहाँ पे ये सिंगिंग क्वालिफाई कर रहा है नाउन को। अभी हमने डेफिनेट पढ़ी है पार्टिसिपल की कि वो प्रोनाउन और नाउन को क्वालिफाई करता है, तो इसलिए यहाँ पे ये सिंगिंग जो है वो पार्टिसिपल हुआ। अब देखिए सिंगिंग को अगर हम दोबारा यूज करें एज ए जेरेंट तो यहाँ इसके साथ नाउन नहीं आएगा, सिंगल आएगा। सिंगिंग अ सॉन्ग is very time consuming, it's very tough exercise, exercise for the trainer, for the new singers, for the music, singing a song। अब देखिए मैं बताया था जेरेंट में ना हमेशा आप उर्दू भी करोगे ना तो उर्दू में करते हो ना आपको मुंह में नाम जरूर आएगा। अब इसकी उर्दू करेंगे सिंगिंग का सॉन्ग, गाना गाना। अब देखिए नून में ना है, तो जब जेरेंट की एग्जांपल आप ये नून में ना से ले लिया करें और पार्टिसिपल के साथ हमेशा नाउन होगा तो आप समझ लेना कि ये पार्टिसिपल है जब इसके साथ नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो। अब इसकी बुक की एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा जी, जब पार्टिसिपल की दो काइंड होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। व्हेन वी यूज वर्ब विद आईएनजी एज एन एडजेक्टिव इट इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल एग्जांपल, द लाफिंग लेडी, लेडी ये क्या है, नाउन है ना, वो क्या कर रही थी, हंसती हुई, ठीक है, हंसती हुई, तो द लाफिंग लेडी। द फॉलिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा, गिरता हुआ, तो यहाँ पे भी फॉलिंग जो है ना एज ए पार्टिसिपल यूज हुआ। द स्टिंगिंग रिमार्क्स, चुभने वाले रिमार्क्स, लेकिन स्टिंगिंग। अब जब हम कहेंगे द हनी बी या वास्प इज स्टिंगिंग, तो यहाँ पे ये स्टिंगिंग एज ए मेन वर्ब के तौर पे आ रहा है। जब हम कहेंगे ही शी पास्ड वेरी स्टिंगिंग रिमार्क, तो रिमार्क जो है नाउन है, नाउन के साथ स्टिंगिंग का वर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ पे स्टिंगिंग एज ए पार्टिसिपल यूज हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसके साथ पास्ट पार्टिसिपल बहुत इजी है। पास्ट पार्टिसिपल जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब हम करते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अभी हमने किया प्रेजेंट पार्टिसिपल और एग्जांपल दी थी लाफिंग लेडी,
यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल, देखिए यहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी, यहाँ पे वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब हम वर्ब को थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जब हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव, तो ये पास्ट पार्टिसिपल होगा। अब देखिए एग्जांपल देखिए, टायर्ड डांसर, टायर्ड डांसर, डांसर कैसी थी? टायर्ड। टायर्ड किसकी थर्ड फॉर्म है? टायर्ड टायर्ड टायर्ड। तो जब वर्ब की थर्ड फॉर्म नाउन के साथ यूज हो और क्वालिफाई नाउन को ही करे तो ये भी पार्टिसिपल है, लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज हो रही है इसलिए। उसके बाद इंजर्ड प्लेयर, प्लेयर कौन सा था? प्लेयर। अब प्लेयर नाउन है, नाउन कैसा था? नाउन की हालत कैसी थी? इंजर्ड। अब इंजर्ड जो है वो थर्ड फॉर्म है, इसलिए इसको एज ए थर्ड फॉर्म यूज हुई है, प्लेयर के साथ क्वालिफाई कर रहे हैं एडजेक्टिव नाउन को, तो ये एडजेक्टिव हुआ, इसलिए इसको पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। हाँ, वॉज एक बर्तन है, वॉज। अब ये वॉज कैसा वॉज है? क्रैक्ड हुआ हुआ, क्रैक्ड। अब क्रैक्ड जो है वो की थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म किसको क्वालिफाई कर रही है? वॉज को। तो दैट्स द पास्ट पार्टिसिपल। अंडरलाइन, एफ पार्ट में आ जाए, अंडरलाइन द पार्टिसिपल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आप बहुत इजी, आप खुद करो इसको। ही वाज सो शॉक्ड ड्यू टू द एक्सीडेंट दैट ही कुड नॉट स्पीक। ही वाज सो शॉक्ड, शॉक की थर्ड फॉर्म शॉक्ड, तो यहां पे पास्ट पार्टिसिपल। द गैलोपिंग हॉर्स, हॉर्स कैसा था? गैलोपिंग, आईएनजी, आईएनजी, तो यहां पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। I don't want that burnt toast. Burnt adjective की verb की थर्ड फॉर्म burnt, burnt, burnt. तो toast कैसा था? burnt, थर्ड फॉर्म है, तो past participle हो गया। Do not be frightened. Frightened, frightened. तो frightened is a third form, that's why it's a past participle. The lorry was carrying stolen goods. Stolen goods. अब देखिए गुड्स कैसी है? स्टोलन। स्टोलन किसकी फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टील, स्टोल, स्टोलन। तो स्टोलन गुड मीन पास्ट पार्टिसिपल। एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड प्रिपेयरिंग द थिंग्स फॉर द ट्रिप। वाज एक्साइटेड, एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड। एक्साइटेड इज द थर्ड फॉर्म, दैट्स व्हाई द लास्ट वन इज सेवंथ। इफ द चिल्ड्रन आर बोर्ड टेक देम टू द पार्क। अगर बच्चे बोर हुए हैं तो उनको पार्क ले जाएं। बोर्ड इज द थर्ड फॉर्म, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो एन पास्ट पार्टिसिपल। आज तक इतना काफी है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज। टुडे वी आर डूइंग यूनिट 6, यूनिट 6 द काइड्स विजन एंड पाकिस्तान। द काइड्स विजन, कायद का जो थॉट था, विजन था कायदे का, तो क्या सोचते थे पाकिस्तान के बारे में? कायदे ने क्या ऑलरेडी अपने माइंड में विजन बना के रखा होता कि पाकिस्तान ऐसा होगा। तो ये चैप्टर उसी के बारे में था। अभी हम इसकी एक्सरसाइज करने लगे हैं, पेज नंबर 66, द काइड्स विजन एंड पाकिस्तान, यूनिट 6, पेज नंबर 66। वोकैबुलरी में आ जाते हैं। एनसर्कल द ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड्स दैट रिलेट्स टू द टेक्स्ट। अब उसने ना जो डिफिकल्ट वर्ड बुक में दिए हुए थे ना, उसी को दोबारा पूछने लगा बच्चों से कि इसके मीनिंग आपके नजदीक क्या है। नंबर 1, वी आर अ नेशन। ही अफर्म्ड 3 years बिफोर। अफर्म्ड, अब देखिए अफर्म्ड किसी चीज को जोर दे के कहना, अफर्म्ड, ठीक है, किसी चीज को जोर दे के कहना। वी आर नेशन, ये कायदा ने कहा। He affirmed 3 years before the birth of Pakistan. पाकिस्तान बनने से 3 साल पहले कह दिया। अब उसकी 3 ऑप्शन है आपके पास, told, said, emphatically, broken. अब told का मतलब तो आपको पता है, आम बताना होता है।
और सेट एम्फेटिकली, जोर दे के कहना। अफर्म का मतलब जोर दे के कहना, इसका मतलब सेट एम्फेटिकली इज द राइट ऑप्शन। एम्फेटिकली जोर दे के कोई चीज कहना, एम्फेटिक प्रोनाउन, इसी से वर्ड लिखा हुआ एम्फेटिक प्रोनाउन, जोर दे के सुनना। नंबर 2, we have our own distinctive outlook of life. We have our own distinctive outlook of life. अब distinctive को अंडरलाइन किया उन्होंने। अब distinctive का मीनिंग देखें आप, distinguish, powerful and wavering. Wavering होता है जो आप कंफर्म ना हो, आप शेकी शेकी हो। पावरफुल मजबूत, distinguish मीन बहुत ही डिफरेंट दूसरों से, तो distinctive is very nearest to distinguish. डिस्टिंक्टिव मीन नमाया, डिस्टिंक्टिव। देखिए उसने इम्तिहान पास किया डिस्टिंक्शन में, डिस्टिंक्शन मीन दूसरे बच्चों से बिल्कुल वो अलग था, डिस्टिंक्टिव डिस्टिंग्विश था, साफ नजर आ रहा था कि बहुत हाईएस्ट मार्क्स थे। डिस्टिंग्विश बहुत डिफरेंट तरह के, अलग नमाया किस्म के। नंबर 3 है कीप अप योर मोरल, योर सेल्फ एस्टीम ऑफ 42। मोरल कहते हैं आपके अंदर जो हिम्मत, मॉरल करेज, मोरल देखिए 42। अब पहले आप मोरल का मीनिंग समझे। मोरल आपके अंदर वो करेज होती है जिससे आप अपने तकलीफों को, मुसीबतों को बर्दाश्त कर लेते हो। योर मोरल शुड बी वेरी हाई, ठीक है ना। तो इसी तरह फोर्टिट्यूड मीन स्ट्रेंथ ऑफ माइंड दैट इज रेडी टू फेस द डिफिकल्टीज। ये फोर्टिट्यूड जो ज़हन होता है, जो ताकत होती है जिससे मुकाबला किया जा सके, तो इसका नियरेस्ट मीनिंग इज मोरल। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, कायदे में क्या कहा, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ। अब अफ्रेड ऑफ को उन्होंने अंडरलाइन करके बताया, उसने 3 ऑप्शन, अटेंड टू, सेक्रेड, स्केर्ड एंड स्क्वेयर्ड अप। अब बी ऑप्शन स्केर्ड और अफ्रेड ऑफ, दोनों वेरी नजदीक का जस्ट वेरी सिमिलर। नंबर 5, वी शुड फेस इट ब्रेवली, वी शुड फेस इट ब्रेवली। अब ब्रेवली के लिए 3 ऑप्शन यूज हैं, रिपेयर ये तो हो नहीं सकता, कॉप विद सामना करना, यस, करेक्ट सही, इसका मतलब है कोप विद इज द नियरेस्ट सेम मीनिंग ऑफ फेस, तो हम इसको कोप विद को टिक मार्क करेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद लिखा है कंसल्ट अ thesaurus and find out the synonyms of the following words. अब thesaurus is a dictionary that has got multiple choices of words meaning. There is at least 10 to 12, 15 words in a one word. So you can consult the thesaurus for these words. Write the antonyms of the following words. Antonyms mean opposite, antonym, opposite, synonyms same words. अब एंटोनिम्स क्या देखिए, उल्टा देखना हमने, कॉन्फिडेंस, डिफिडेंस और अनसर्टेन। जब आप बिल्कुल श्योर ना हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप अनसर्टेन है, इसका मतलब आपको पता नहीं क्या करना है। ऑनर, इज्जत, डिसऑनर, रिस्पेक्ट ना करना, किसी की डिसऑनर कर देना। देन बिलीफ, डिसबिलीफ, सेपरेट, ज्वाइन, यूनिटी, यूनिटी मीन इकट्ठा, स्कैटर्ड मीन अलग, डिसयूनिटी। पॉलिटिकल, आप पॉलिटिकल का अपोजिट बनाना है तो नॉन पॉलिटिकल लगा के अपोजिट बनाते हैं, नॉन का मतलब जो इसका अपोजिट है। उसके बाद आप देखें पेज नंबर 67 पे, व्हाट इज डेनोटेशन एंड व्हाट इज कॉनोटेशन। मैंने आपको भी पिछले लेक्चर में मीनिंग बता दिया है डेनोटेशन का और कॉनोटेशन का, तो ये आप वो देख लीजिएगा। अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब एक वर्ड होता है, उसको हम डिक्शनरी में देखते हैं, उसको डेनोटेटिव मीनिंग कहेंगे। फैट इज अ वर्ड, अगर हम डिक्शनरी में देखेंगे इसको मैंने लिखा होगा ओवरवेट। अच्छा, अब इसको हम 2-3 वर्ड और भी यूज करते हैं इसके लिए। फैट के लिए हम प्लम्प का वर्ड भी यूज करते हैं, फैट के लिए हम ओबीस का वर्ड भी यूज करते हैं। तो प्लम्प मीन पॉजिटिव कॉनोटेशन और ओबीस इज अ डिजीज, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नेगेटिव कॉनोटेशन, इसका अच्छा मीनिंग नहीं है। नोटोरियस, हर वो बंदा जो बुरी बातों में मशहूर हो उसको नोटोरियस कहते हैं। तो नोटोरियस का डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे ना तो वो लिखा होगा इनफेमस। अब इनफेमस हो गया उसका डिक्शनरी मीनिंग, डेनोटेटिव मीनिंग।
अब उसके दो कॉनोटेशन होंगे, एक कॉनोटेशन होगा पॉपुलर, हम इसको आम वर्ड में पॉपुलर भी कहते हैं और स्कैंडलस भी कहते हैं। स्कैंडलस मीन जो बुरी बातों में मशहूर होता है। स्पिंस्टर, वो लड़की जिसकी शादी ना हुई हो, स्पिंस्टर, और उसके लिए हम डिक्शनरी मीनिंग होता है मेडन, ठीक है। अब इसका दो मीनिंग और ले लेंगे, पॉजिटिव मीनिंग, पॉजिटिव कॉनोटेशन और नेगेटिव कॉनोटेशन। पॉजिटिव कॉनोटेशन मीन ओल्ड मेड, ऐसी औरत जिसकी शादी ना हुई हो, उसकी उम्र गुजर गई हो, ओल्ड मेड। और नेगेटिव कॉनोटेशन मीन रेच्ड, बेचारी, रेच्ड, WRETCHED, रेच्ड, WRETCHED, रेच्ड। स्टर्न, वेरी हार्ड, स्ट्रिक्ट, सख्त किस्म का। तो डिक्शनरी मीनिंग इसका देखेंगे तो हार्श लिखा होगा वहाँ पे, स्टर्न, ही इज वेरी स्टर्न, तो हार्श। इसका पॉजिटिव कॉनोटेशन होगा इसका स्ट्रिक्ट, और नेगेटिव कॉनोटेशन रिजिड। रिजिड होना अच्छी क्वालिटी नहीं है, इसलिए ना रिजिड को नेगेटिव, इसका मतलब भी हार्ड होता है, रिजिड का मतलब, स्ट्रिक्ट का मतलब भी हार्ड, लेकिन ये अपने वर्ड्स जिस सेंस में यूज होते हैं ना, उसको कॉनोटेटिव कहते हैं। प्राउड, प्राउड, यू नो दैट प्राउड टू फील समथिंग दैट यू आर समथिंग। एरोगेंट, इसका डिक्शनरी मीनिंग होगा एरोगेंट, लेकिन इसके हम आगे भी दो मीनिंग, कनोटेटिव मीनिंग लेंगे इसका पॉजिटिव, दैट इज अ ग्रैंड, बहुत बड़ा। और उसके बाद स्नॉबिश, स्नॉबिश कौन होता है? वो बंदा जो अपने आप को कुछ समझता है कि मैं ये चीज़ पहनूंगा तो मैं ये लगूंगा, तो ये अपने आप को प्राउड फील करता है, वो उसको नेगेटिव सेंस में हम कहेंगे स्नॉबिश है ये। श्रूड, बहुत चालाक, डिक्शनरी मीनिंग इसका, डेनोटेटिव मीनिंग क्लेवर। फिर उसके बाद क्लेवर अच्छे साइड में भी यूज होता है, ही इज वेरी वाइज, ही इज वेरी क्लेवर एंड वाइज। उसके बाद दूसरे मतलब नेगेटिव कनोटेशन में देखेंगे मिस्चीवियस, ही इज मिस्चीवियस, वेरी श्रूड। इकोनॉमिकल, 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 इकोनॉमिकल का मतलब डिक्शनरी में देखेंगे तो डेनोटेटिव मीनिंग होगा इसका फ्रूगल, जो बहुत ही चीज देखभाल के चीज खर्च करता है, देखभाल के खर्च करता है। और इसका पॉजिटिव कनोटेशन थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी इज अ गुड वर्ड, थ्रिफ्टी तो वैसे अच्छी तरह, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बंदा हो जाए, उसकी नेगेटिव क्वालिटी क्या है, इज माइजर, कुछ भी नहीं खर्च करता, सब कुछ जमा कर देता है, तो ये नेगेटिव कनोटेशन हो गया उसका। फेल, डिक्शनरी मीनिंग इसका होगा नॉट सक्सीड, फेल डेनोटेटिव मीनिंग नॉट सक्सीड। और पॉजिटिव कनोटेशन इसका डिवेंडर, थोड़ा सा डिवेंडरिंग कर रहा था। और नेगेटिव डिके, बिल्कुल ही खराब हो गया, डिके नेगेटिव कनोटेशन में चला जाता है। चलें जी, अब आ जाए पेज नंबर 69, ग्रामर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कायद, वीएन एंड पाकिस्तान का ग्रामर पार्ट। एडवर्ब्स, एवरीबॉडी नोज अबाउट एडवर्ब। एडवर्ब दैट एड समथिंग इन अ वर्ब, ठीक है ना, एडवर्ब सम दैट अ वर्ड दैट एड समथिंग इन अ वर्ड। अब देखिए, शी वाज सिंगिंग, गा रही थी, कैसे गा रही थी, ब्यूटीफुली। अब ब्यूटीफुली हमने एक वर्ड ऐसा लगाया जो हमें सिंगिंग के बारे में मॉडिफाई करना, सिंगिंग को, उसने गाना गाया, ठीक है, कैसा गाया, साथ ही वर्ड और गा दिया ब्यूटीफुली। अब ब्यूटीफुली गाने से पता चला उसने गाना कैसे गाया। अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। अब देखिए, अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, नंबर 2 एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, तीन चीजों को ये मॉडिफाई करता है, इज कॉल्ड एन एडवर्ब। एडवर्ब यूजुअली कम इन द फॉलोइंग पोजीशन इन अ सेंटेंस। अब ये पोजीशन बताएगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ आते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर जो होते हैं ना, वो हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। देखिए, शी वॉज सिंगिंग, वो गा रही थी, कैसे गा रही थी, ब्यूटीफुली। हम ये नहीं कह सकते शी वॉज ब्यूटीफुली सिंगिंग, जो ब्यूटीफुली जो है ना एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, उसकी प्लेस होती है, वो वर्ब के बाद आता है। अच्छा, कहाँ गा रही थी वो, एट अ कंसर्ट, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस उसके बाद, एडवर्ब ऑफ मैनर उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ गा रही थी, एट अ कंसर्ट। और कब गा रही थी, एडवर्ब ऑफ टाइम, लास्ट संडे। इसका मतलब है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, तीन चीज़ों को आपने ये कॉम्बिनेशन बनाना है, इनको सीक्वेंस में लिखना होता है। इसलिए ये तीन चीज़ें हो गई, गाना गा रही थी, कैसे गा रही थी, ब्यूटीफुली, कहाँ गा रही थी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एट ए कंसर्ट, और कब गा रही थी, लास्ट संडे, एडवर्ब ऑफ टाइम। अच्छा, इसके बाद हम इन्फिनिटिव।
इन्फिनेटिव इज द टू फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अब जब वर्ब के साथ वर्ब से पहले हम टू लगाते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले टू लगाएंगे ना, दैट इज इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव असल मेन वर्ब नहीं होता, ये वर्ब के बाद आता है, इसलिए इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। He likes to eat, he likes मेन वर्ब ये हो गया, टू ईट, ये टू ईट है जो है वर्ब, और टू के साथ जब कोई वर्ब की फॉर्म आएगी दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा हो तो ये इन्फिनेटिव होता है। ही लाइक्स टू ईट समथिंग, इसका मतलब ये इन्फिनेटिव है। इसी तरह टू wake up early in the morning, early is a good habit, to wake up, अब वर्ब से पहले टू आया तो ये भी इन्फिनेटिव है। अच्छा इसमें एग्जांपल दिया है, यू आर फ्री, तुम आजाद, टू गो, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे पहले टू लगाया हुआ तो ये इन्फिनेटिव हो गया, टू गो। उसने अंडरलाइन किया होगा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपने इसको इन्फिनेटिव में टिक मार्क कर देना। उसके बाद एक और ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद हम टू नहीं लगाते, वो अंडरस्टूड होता है, उसको इन्फिनेटिव कहते हैं, लेकिन दूसरे ब्लैंक इन्फिनेटिव होते हैं ये, इनको पॉजिटिव वर्ब भी कहते हैं। ही मेड द पीपल वर्क, अब देखिए ही मेड द पीपल, टू वर्ब नहीं कहा हमने, ही मेड द पीपल वर्क। अब वैसे अंडरस्टूड देखा जाए तो यहाँ पे टू भी आना चाहिए था, लेकिन हम मेड के बाद हम टू नहीं लगाते, इसलिए टू अंडरस्टूड होता है। तो जब एग्जाम में आपको आएगा ना वर्क, तो आपने ये नहीं कहना कि सर ने तो कहा था इन्फिनेटिव जो होते हैं वो टू के साथ ही शुरू होते हैं। इन्फिनेटिव जो है वो बात इन्फिनेटिव ऐसे होते हैं जो ब्लैंक इन्फिनेटिव होते हैं, वो इसके वर्ब के टू नहीं आता, उसमें अंडरस्टूड होता है टू। ही मेड द पीपल वर्क। अच्छा जी, अब इसके बाद जेरंड में आ जाते हैं। जेरंड मैंने भी आपको पिछले एग्जांपल में बता दिया था कि व्हेन द वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी यूज्ड एज अ नाउन, पार्टिसिपल क्या था, वर्ब विद आईएनजी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव के साथ यूज हो रहा था, नाउन से पहले आता था पार्टिसिपल। अब ये अकेला आएगा, जेरंड जो है ना वो नाउन के तौर पे आता है। उसके अब एग्जांपल में आप अगर उर्दू करेंगे तो इसको पता चल जाएगा कि नून इस्ना तो वाकई में आएगा ही। पेंटिंग इज अ गुड फन, अब देखिए एक चीज़ है ना पेंटिंग, पेंटिंग एक आर्ट है, तो ये पेंटिंग इज अ गुड फन। तो यहाँ पे पेंटिंग जो है ना वो वर्ब के तौर पे नहीं आया, वर्ब के तौर पे नहीं आया यहाँ पे। यार जैसे देखिए हम कहते हैं ही इज पेंटिंग, वो क्या कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आके देन पेंटिंग इज गुड फन। अब फन जो है वो एक चीज है, कहता है पेंटिंग जो है ना, पेंटिंग करना एक फन है, बहुत बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए पेंटिंग यहाँ पे इस सेंस में नहीं आया जिस सेंस में जो वर्ब के तौर पे आ रहा है। यहाँ पे एक नाउन के तौर पर आया है, चीज है, इसको करना अच्छा लगता है। आई लाइक पेंटिंग, यहाँ भी देखें आई लाइक पेंटिंग, मुझे अच्छी लगती है। वर्ब तो ये है ना, बस बच्चे इसको वर्ब ना समझे, वर्ब नहीं है, ये चीज है। आई लाइक एन एप्पल, आई लाइक अ मूवी, ये जैसे मूवी और एप्पल एक चीज है, ये भी पेंटिंग एक चीज है। तो जब नाउन के तौर पे यूज हो तो ये जेनरल है, जब यही आईएनजी एज एन एडजेक्टिव यूज हो तो ये पार्टिसिपल है। इसने एग्जांपल दे दी हुई है, पेंटिंग इज अ गुड फन, पेंटिंग आई लाइक पेंटिंग, आईएनजी फॉर्म है। माय फेवरेट हॉबी इज पेंटिंग, ये तीनों पेंटिंग जो है ना यहाँ पे एज ए जेनरल यूज हुई है। अच्छा जी, अब आप तीसरी टाइप पे आ जाते हैं। हमने कंडीशनल नंबर टाइप 1 भी किया है। अब आपको मैं जस्ट रिमाइंड टू रिकॉल यू कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल टाइप 3, उसको थर्ड टाइप कहते हैं। टाइप ये इस तरह नहीं जी, कंडीशनल टाइप अनफुलफिल्ड कंडीशन, ये एक एक्शन नहीं होता, उसकी वजह से दूसरा एक्शन अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं होता।
इसको अनकंडीशनल अनफुलफिल्ड कंडीशंस कहते हैं इनको। इसमें हम इसका फॉर्मूला पहले याद करें तो फिर आपको करने भी चाहिए। इफ सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म, सेकंड क्लॉज जो होगी वो सब्जेक्ट के साथ वुड हैव, कुड हैव, might have, according to the situation of the sentence, have third form of verb, third form of verb। ठीक है, अगर पाकिस्तानी टीम अच्छा खेलती तो मैच जीत जाती। अब देखिए पाकिस्तानी टीम अच्छा नहीं खेली ना तो वो नहीं जीती, तो अनफुलफिल्ड कंडीशन है। आप देखिए हम क्या करेंगे, इफ आवर टीम, ये हो गया सब्जेक्ट। अब इसके बाद हमें हैड निकालना है। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड वेल, प्लेड वेल क्या होगा फिर, और दे वुड हैव won the match, they would have won the match। इसी नेक्स्ट एग्जांपल नोट करेंगे। इसने कोई एग्जांपल नहीं दिया, आप देखिए इफ वी हैड पेड हीड, अगर हम तवज्जो देते, अगर इसका मतलब है एक्शन इज ऑलमोस्ट फिनिश, एग्जाम हो गए हैं, आप एग्जाम के बाद ये सेंटेंस कह रहे हैं इफ वी हैड पेड हीड टू हिज वार्निंग्स एंड एडवाइस, अगर हम उसकी नसीहत पर अमल करते तवज्जो देते, पे हीड का मतलब तवज्जो देते, क्या होना था फिर, वी वुड नॉट हैव गॉट एंटेंगल्ड इनटू पेटी परसूट्स, हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों में ना फंसते उस वक्त। तो इसका मतलब है आप एक्शन हो जाने के बाद आप फंस गए, तो आप इसलिए कह रहे हो कि अगर हमने तवज्जो दी होती तो ये कंडीशन होती है जो फर्स्ट पे डिपेंड करती है सेकंड कंडीशन, सेकंड सेंटेंस होता है। ले जी, अब अगला पेज है 70, ये बहुत इजी चीज़ है, आप खुद कर लें इसको। फाइंड द काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स इन द यूनिट। यूनिट में जितने भी एडवर्ब आए ना आपने वहाँ पे लगा के, यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर है, जैसे स्ट्रांगली, ब्रेवली, फर्मली, ये यूज़ हुए हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस भी यूज़ हुए हैं, कहाँ कहाँ कायदा में तकरीर की, वो जितने भी इलाके होंगे ना वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम, कब कब उन्होंने तकरीरें की, किस जगह पे, किस वक्त, उसमें बुक में टुडे भी है, अर्ली भी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी दफ़ा, नन, वो है नहीं है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, कितनी शिद्दत के साथ, ये भी नहीं है उसमें। चलें जी, बी पार्ट, राइट 5 sentences यूजिंग द वर्ब्स ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम इन द करेक्ट, ये आपने होमवर्क में कर लेना है। उसके बाद मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, ये भी आपने होमवर्क में करना है। सॉ, प्रॉमिस्ड, वांटेड। आप देखें अगर 100 लिखा हो ना तो आपने सेंटेंस बनाते हो 100 का ही बनाना है, सीन नहीं कर देना उसको, 100 का ही रहने देना उसको। अच्छा जी, अब आ जाए ये ई पार्ट पे आ जाते हैं। डी पार्ट, कंप्लीट दीज फ्रेजेस बाय एडिंग द जेरेंड। अब देखिए फ्रेजेस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब गुड एड के बाद आप कोई भी जेरेंड लगा देते हैं। गुड एट doing singing a song, he is good at singing a song, he is good at baking biryani। sad at the news of women's। accused of stealing। tired of going school, tired of doing this homework again and again। tired of के बाद ing, उसके बाद verb। कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल्स। अब उसने एक सेंटेंस दिया और आपको पूछेगा कि टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, हो सकता है वो ये भी आपसे पूछेंगे कि इसका हैड आएगा, वुड हैव आएगा इसमें। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड, अगर आपको एग्जाम में पहला सेंटेंस में हैड भी आ जाता है और साथ थर्ड फॉर्म भी आ जाती है तो आपने गेस कर लेना कि ये थर्ड है। थर्ड कंडीशन उन्होंने बताई है कि हमेशा वुड हैव, माइट हैव द थर्ड फॉर्म। तो अगला सेंटेंस आपने बना लेना है। इफ यू हैड कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आते, आई वुड हैव एंटरटेन यू विद पिज़्ज़ा विद समथिंग एल्स, तो आई वुड हैव। इफ आई हैड सीन हिम, अगर मैं उसे देख लेता तो, मैंने इसका मतलब उसे नहीं देखा, तो आई वुड हैव कॉल्ड हिम। मैंने उसे नहीं देखा तो इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया।
If I had seen him, अगर मैं देख लेता तो मैं उससे जरूर बुलाता. I would have called him. Challenge. This is your exercise. I think it's almost finished. Unit 5 and Unit 6 we have done so far. And it's okay for the exams. T4 is your coming this next month, 5th of February. Allah Hafiz.